student, how are you? I'm Disha Tripathi, your English teacher, and today again I am here to give you a new chapter of your book Honeydew, and the chapter is chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Lapse means he has forgotten something, कुछ भूल गए हैं, lapse of memory, and this chapter is written by Satyajit Roy. The main characters of this chapters are Bipin Chaudhary, Parimal Ghosh, Mr. Dinesh Mukherjee, Chunni Lal, and the Dr. Paresh Chandra. In this chapter, the main character is Bipin Chaudhary, and three of these, that is Parimal Ghosh, Mr. Dinesh Mukherjee, and Chunni Lal, are we can say three of these are his friends. And the last one is Dr. Paresh Chandra. He was a doctor. So, before starting this chapter, I want to ask a question with you. How do you feel if someone told you that you had forgotten your memory, your past memory, your some part of your life? What do you feel? अगर आपको कोई आकर बोले कि अपनी ज़िंदगी का कुछ एक पार्ट, आपके जीवन का कुछ एक पार्ट आप भूल चुके हैं और आपको याद नहीं आ रहा है, तो हाउ डू यू फील? आपको कैसा लगेगा? So in this chapter here it is the same thing is this. So I want to just summarize this chapter. It is a humorous story. Humorous means ironical, जिसमें हमें मजा आए, हंसी आए. So it is a humorous story in which the main character means Bipin Chaudhary. The main character is made to believe himself sick. So ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है बिपिन चौधरी, उनको ये बात मानने के लिए मजबूर किया जाता है कि वो बीमार हैं. और क्या बीमारी है उनको? That he has forgotten a part of his life completely. कि वो उनकी याददाश्त खो चुकी है, अपने जीवन का एक पार्ट के बारे में वो भूल चुके हैं, उनकी याददाश्त खो चुकी है. So he thinks that he has a lapse of memory. But in truth there is nothing wrong with them. लेकिन हकीकत क्या होती है? लास्ट में हम लोगों को क्या पता चलता है स्टोरी में? कि ऐसा कुछ नहीं था और वो बिल्कुल सही थे. So now we go through the chapter with the help of our book, NCERT book, Honeydew, chapter number 4. So we will start. Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books. So every Monday means हर सोमवार को, on his way back from work, जब वो काम करके शाम को जब अपने घर पे लौटा करते थे बिपिन चौधरी, here we are talking about बिपिन चौधरी, he would drop in at काली चरण's in New Market to buy books. तो न्यू मार्केट में जो काली चरण की शॉप थी, बुक शॉप थी, वहाँ पर बिपिन चौधरी हर मंडे को रुका करते थे. जब वो घर की शाम को काम करके घर को लौटते थे, उस वक्त रोज उनका ये रूटीन था हर मंडे को काली चरण की बुक शॉप पर रुकने का, क्योंकि वहां से उनको कुछ बुक्स खरीदनी होती है. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स. और बुक्स कौन कौन सी होती थी? क्राइम स्टोरीज भी हो सकती थी, घोस्ट स्टोरीज भी हो सकती थी, भूत की. थ्रिलर्स मतलब दैट मेक अस थ्रिल, रोमांचक. तो किसी भी तरह की वो स्टोरीज की बुक वो वहां से खरीदते थे. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. और क्योंकि वो हर मंडे को जाते थे शॉप पे, तो हर मंडे को वो कम से कम वहां से कालीचरण की शॉप से 5 बुक्स को वो हमेशा लेकर आते थे, ताकि पूरे वीक में वो 5 बुक्सों को वो कंप्लीट कर सके. That's why he purchased at least 5 books at a time on every Monday. He lived alone, was not a good mixture, had few friends and didn't like spending time in idle chat. So he lived alone. वो अकेले रहते थे. These are some characteristics of Mr. Bipin Chaudhary. He lived alone. वो अकेले रहते थे. Was not a good mixture. It means he was an introvert. वो हर किसी के साथ घुल-मिल आसानी से नहीं घुल-मिल जाते थे. He was introvert. Had few friends, कुछ दोस्त थे उनके, and didn't like spending time in idle chat. और उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि फालतू की बातें बैठकर वो करें.
Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing from close quarters. और जब आज, it means that was the day Monday. So this time जब वो बुक लेने गए इस मंडे को, तो he felt that someone is observing him very closely. कोई उनको बहुत ही करीब से उनको ऑब्जर्व कर रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ पर पाया कि एक बहुत ही meek-looking man. It means meek-looking मतलब क्वाइट हम्बल, सीधा सा नजर आने वाला एक आदमी उनको देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. हैव वी मीट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. तो जैसे बिपुल मामू ने पीछे मुड़कर उसको देखा तो उसने बोला आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. इट मीन्स वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपने मुझे पहचाना है. तो बिपिन बाबू ने उनको जवाब दिया हैव यू मीट बिफोर? क्या तुम मुझसे पहले मिले हुए हो? The man looked greatly surprised. So ये सुनकर जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया. We met every day for whole week. हम तो पूरे एक वीक तक रोज मिले थे सर. आप कैसे भूल गए हैं? I arranged for a car to take you to a हुड्रू फॉल. आप भूल गए हैं, मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी. जब आपको हुड्रू फॉल जाना था तो उसके लिए मैंने 1958 में आपके लिए कार अरेंज की थी. 1958 इन रांची. माई नेम इज परिमल घोष. और रांची में मैंने जब आपको हुड्रू फॉल जाना था तब मैंने आपके लिए एक कार अरेंज की थी और मेरा नाम परिमल घोष है. ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. नाउ बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही वाज नॉट he but this man who was making a mistake. So अब बिपिन बाबू को ये रियलाइज होने लगा कि नहीं, ये आदमी कुछ गलत कह रहा है, इसको कुछ गलत फहमी हो गई है. बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची. क्योंकि बिपिन बाबू तो कभी रांची ही नहीं गए थे. ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट. उन्होंने कई बार ये कोशिश की कि वो रांची जाए, लेकिन ऐसा एक बार भी हो नहीं पाया. ही स्माइल्ड एंड सैड. वो उसकी तरफ मुस्कुराए और बोले डू यू नो हु आई एम? डू यू नो हु आई एम? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज. जो आदमी था उसने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोला बिट हिज टंग एंड सैड. अपनी बिट हिज टंग मींस अपनी जबान को दबाते हुए, दांतों के नीचे चबाते हुए और अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोला डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? क्या आपने कैसा अजीब सा क्वेश्चन मुझसे किया है? क्या मैं आपको पहचानता हूँ? ऐसा कौन सा इंसान है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता है? Bipin Chaudhary now turned towards the bookshelves and said, still you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi. तो अब बिपिन बाबू बुक शेल्फ की तरफ टर्न हुए और उससे बोले कि you had made some mistake. तुमसे कुछ गलती हो रही है. मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ. The man now laughed aloud. जो आदमी था वो जोर से हंसा. What are you saying, Mr. Chaudhary? You had a fall in Hudru and cut your right knee. आप ऐसे कैसे बोल सकते हो मिस्टर चौधरी? आपको पता है जब आप हुड्रू फॉल गए थे आपकी राइट नी में चोट भी लग गई थी, कट भी लग गया था. I brought you iodine. और उस वक्त मैं आपके लिए आयोडीन भी लेके आया था. I had fixed up a car for you to go to Netherhat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. और मैंने दूसरे दिन के लिए भी, क्योंकि आपको लेटर हैट जाना था, तो मैंने दूसरे दिन के लिए भी आपके लिए कार हायर की थी, मैनेज की थी, लेकिन आप जा नहीं पाए थे क्योंकि आपकी नी में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा दर्द था. Can't you recall anything? Don't you recollect anything? क्या तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है? Someone else you know was also in Ranchi at that time. और एक और ऐसा इंसान है जिसको आप रांची में जानते थे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी. और that stranger, that man named the another man Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and would prefer to have your meal cooked by a बावर्ची. और आप एक बंगलो में रुके थे. आपने बताया था आपको होटल का खाना पसंद नहीं है, आपको बावर्ची के हाथ का ही खाना पसंद है. Mr. Mukherjee stayed
fight with his sister. You had a big argument about the moon landing. Remember, आपको पता है बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी मून लैंडिंग के बारे में. I will tell you more. मैं और भी कुछ आपको बताता हूँ उस बारे में. You always carried a bag with your books in it on your sightseeing trips. आप जब भी साइट सीइंग ट्रिप्स पे जाते थे, कभी भी जब भी नेचुरल साइट्स को देखने जाते थे, तो अपने बैग, आपके पास में एक बैग होता था जिसमें आपकी बुक्स रहती थी. एम आई राइट और नॉट? या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं सही हूँ या गलत हूँ? बिपिन बाबू spoke quietly, his eyes still on the books. बिपिन बाबू चुपचाप बोल रहे थे, उनकी आंखें जो थी वो बुक्स पे थी. Still concentrated on his books. Which month in 58 are you talking about? The man said October. तो उन्होंने पूछा किस which month in 58, कौन से 1958 के कौन से मंथ की तुम बात कर रहे हो? So that man replied him, the month that is October. No sir, said Bipin Babu. I spent puja in 58 with a friend in Kanpur. You are making a mistake. Good day. So Bipin Babu lastly said, no, you are incorrect. I am in a puja in 58 with my friend. मैं अपने एक दोस्त के साथ कानपुर में था, पूजा में, पूजा के फंक्शन में था अपने फ्रेंड के साथ कानपुर में. आप, मैं दोबारा बोलता हूँ, आप कुछ गलती कर रहे हो. But the man didn't go, nor did he stop talking. लेकिन वो आदमी वहाँ से गया नहीं और उसने बात करना भी नहीं बंद किया. Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. बहुत ही आश्चर्य की बात है. वो आदमी, that person replied him, answered him कि very strange, बहुत ही strange में आश्चर्य, बहुत आश्चर्य की बात है. आपको याद नहीं आ रही? You didn't recollect those days. One evening I had tea with you in your veranda in your bungalow. एक दिन, एक शाम को मैंने आपके साथ चाय भी ली थी आपके बंगलो के वरांडा में, और आपने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में भी बताया था और ये भी बताया था आपके कोई बच्चे नहीं है. एंड यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago. और आप अपनी वाइफ को 10 साल पहले खो चुके हो. Your only brother had died insane. और आपका जो एक अकेला भाई था वो भी मर चुका है. इंसान मीन्स INSAN. इंसान मीन्स पागल, पागलपन की वजह से वो मर चुका है. Which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. और यही एक वजह थी जिसकी वजह से आपने रांची में मेंटल हॉस्पिटल विजिट नहीं किया था. When Bipin Babu had packed for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. और जब बिपिन बाबू शॉपकीपर को, कालीचरण को पैसे दे रहे थे बुक्स को और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, तब भी वो आदमी बड़ी स्ट्रेंज तरीके से उनको देखे जा रहा था लगातार. नेक्स्ट, बिपिन बाबू's car was safely parked in Butterm Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार पार्क थी बटरम स्ट्रीट में, जो कि लाइट हाउस के पास, सिनेमा लाइट हाउस के पास में पार्क थी. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you Sitaram? Sitaram was a driver. Sitaram was the name of driver. So he ordered Sitaram to drive fast by the bank of Ganga river. Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. Intruder means अनजान व्यक्ति. तो रास्ते में बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्यों मैंने एक अनजान, एक स्ट्रेंजर को इतना टाइम उसके ऊपर वेस्ट किया, उसकी इतनी सारी बातें मैंने सुनी. He had never been to Ranchi. No question about it. वो तो कभी रांची गए ही नहीं, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory. उनको विश्वास था कि उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो भूल नहीं सकते. 6-7 साल पुरानी बात को वो बिल्कुल नहीं भूल सकते थे. Unless Bipin Babu's had read, was he losing mind? फिर भी दिमाग में उनके चल रहा था कि आप वो कुछ भूल तो नहीं रहे हैं. But how could that be? लेकिन ये कैसे हो सकता है? He was working daily in his office. वो तो रोज अपने ऑफिस में काम करते हैं. It was a big firm. और उनका ऑफिस कोई छोटा मोटा ऑफिस नहीं है, वो बहुत बड़ा बिग फर्म है. अगर उनको लैप्स ऑफ मेमोरी है या किसी तरह की बीमारी है तो वो ऑफिस में काम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो तो इतनी बड़ी बिग फर्म में ऑलरेडी काम कर रहे हैं. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब.
He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting. And ये तो और आज ही की बात है कि वो लगातार आधे घंटे तक वो एक बहुत ही important meeting लेकर आए थे. And yet the man knew a great deal about him. How? लेकिन फिर भी उस आदमी को, विपिन बाबू सोचते हैं उस आदमी को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है. He even seemed to know some intimate details. और उसे तो कुछ intimate means very personal and private. कुछ बहुत ही personal और private बातें भी मुझे बताइए, वो सब उसको कैसे पता. Like the bag of books, wife's death, brother's insanity. ये सारी तो बहुत ही इंटीमेट बातें थी, बहुत ही पर्सनल प्राइवेट बातें थी, ये सब उनको कैसे पता. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. लेकिन उनकी जो एक गलती थी वो गलती सिर्फ थी रांची, जो बोलते थे रांची रांची तो मैं गया ही नहीं. In 1958 during the pujas he was in Kanpur at his friend हरिदास बागचीज प्लेस. और जो 58 की बात करा, 58 में तो कानपुर में थे अपने फ्रेंड के घर पर पूजा में, जिसका नाम हरिदास बागची था. All Bipin Babu had to do was write to. No, there was no way of writing to Haridas. तभी उनके दिमाग में आया क्यों ना मैं हरिदास को लिखकर पूछूं. लेकिन हरिदास से लिखने का कोई मतलब ही नहीं है. Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago. And he didn't have his address. तभी उनको याद आया. He remembered that Haridas has left his country and went to Japan with his wife few weeks ago. कुछ हफ्ते पहले ही हरिदास जापान जा चुके हैं अपनी वाइफ के साथ में, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं है. But where was the need for proof? लेकिन प्रूफ की जरूरत क्या है. वो अब खुद से बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अब लेकिन प्रूफ की जरूरत क्या है. He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi. वो खुद उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो रांची कभी गए ही नहीं. And that was that. और बस बात खत्म. The river breeze was brashing. Breeze means हवाएं, ठंडी ठंडी हवा के झोंके. Brashing means cumulative. ठंडी ठंडी गंगा के किनारे वो पहुंच चुके थे, वहां पर ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे. And yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. हालांकि उनके दिमाग में अभी भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था. Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. तभी उनको अचानक से ध्यान आया राइट नी के बारे में. तो he rolled up his trousers. उन्होंने अपने ट्राउजर्स ऊपर किए और राइट नी पर निशान को देखने की उन्होंने कोशिश की. There was a mark of an old inch claw cut. Okay? वाकई में उनके राइट नी पर एक निशान था कट का. It was impossible to tell when the injury had occurred. लेकिन ये बताना मुश्किल था कि ये इंजरी कब उनको हुई थी. Had he had a fall as a boy and cut his knee? He tried to recall such an incident but couldn't. He tried to recollect that whether he had ever fall as a boy. जब वो छोटे थे तब कहीं गिर गए थे तो ये कट आ गया था. उन्होंने recollect means remember. He tried to remember कि कहीं वो बचपन में गिरे तो नहीं थे जिसकी वजह से ये कट थी, लेकिन उनको कुछ ऐसा ध्यान नहीं आ रहा था. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. तभी बिपिन बाबू के दिमाग में दिनेश मुखर्जी का नाम याद आता है. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. क्योंकि उस स्ट्रेंजर ने बताया था कि उस वक्त उनके साथ में दिनेश मुखर्जी भी थे. The best thing surely would be to ask him. सबसे अच्छा तरीका यही है कि दिनेश मुखर्जी से बात की जाए. He lived quite near in Banninden Street. वो पास में ही Banninden Street में रहते थे. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? तभी उनके दिमाग में एक चीज आई कि अगर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है वो रांची नहीं गए थे और इस बारे में अगर वो दिनेश मुखर्जी से पूछेंगे तो वो बिपिन बाबू के बारे में क्या सोचेगा कि कैसा इंसान है, कि मुझसे क्यों पूछ रहा है जब खुद को पता है रांची गया नहीं और कंफर्मेशन के लिए मुझसे क्यों पूछ रहा है. He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it wouldn't ridiculous to ask him. वो खुद डिसाइड करते हैं. Going nuts means crazy, going mad. दिनेश मुखर्जी सोचेंगे कि बिपिन बाबू पागल हो चुके हैं. So he refused. वो इस चीज को भी डिनाई करते हैं कि दिनेश मुखर्जी से भी वो बात नहीं करेंगे.
एंड ही न्यू हाउ worthless दिनेश टार्कन्स could be, और उनको पता है कि दिनेश मुखर्जी किस तरह से मजाक बनाते हैं. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again. और जब घर पे पहुंचकर अपने एयर कंडीशन रूम में कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए वो बैठे थे. Such a nuisance, just because they have nothing else to do. They go about getting into other poor people's hair. After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forget all about the man in New Market. और जब आखिर में रात में डिनर करके जब स्नगिंग में सोने के लिए जब अपने बिस्तर में गए, अपनी एक नई थ्रिलर बुक को रीड करते करते वो दिन भर जो आदमी के साथ हुआ था उसको पढ़ते पढ़ते सब कुछ वो भूल गए. Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? तो जब वो नेक्स्ट डे ऑफिस में गए तो बार बार बिपिन बाबू के दिमाग में उस मैन की बातें आ रही थी कि जब वो रांची गए नहीं तो बिपिन बाबू के बारे में उस आदमी को इतनी जानकारी, इतनी इंफॉर्मेशन कैसे. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. और लंच के टाइम में बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करेंगे. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face couldn't show. तो उनको लगा कि फेस टू फेस बात करने से अच्छा है टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन करके उनसे उस बारे में पूछ ले. कम से कम उनको एम्ब्रेसमेंट में शर्मिंदगी महसूस तो नहीं होगी, करनी पड़ेगी. 2 3 5 6 1 6. Bipin Babu could dial the number. Hello, is that Dinesh? This is Bipin here. Well, what is the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. So Bipin Babu asked Dinesh Mukherjee that are you recollect or you remember the incident that happened in 58 in Ranchi? 58? What incident? Dinesh Mukherjee asked him. What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I got to know. Wait just a minute. 58. Just let me check my diary. So Dinesh Mukherjee अपनी डायरी को चेक करने लगते हैं. फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस. और एक मिनट के लिए वहां पर बिल्कुल साइलेंस हो गया. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल. उनके पसीने छूटने लगे. हेलो, यस आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन आउट ट्वाइस. वेयर? तो दिनेश मुखर्जी बताते हैं कि मैं 58 में 2 बार बाहर गया था. एंड बिपिन चौधरी आस्क्ड हिम वेयर, कहाँ गए थे? Once in Fab nearby Krishnanagar to a nephew's wedding. एक तो मैं कृष्णनगर गया था अपनी नेफ्यू की वेडिंग में. एंड देन बट यू हैड नो अबाउट दिस वन. लेकिन तुम्हें इस बारे में पता है. द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू. हम रांची भी गए थे और तुम भी मेरे साथ थे. दैट्स ऑल. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? स्लूथिंग मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग. सो वो पूछते लेकिन तुम इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? नो, आई जस्ट वांटेड टू. Anyway, thanks. Bipin Babu slammed the receivers down and gripped his hat with his hand. He felt his hat swimming. A chill seemed to spread over his body. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. So, ये सुनकर सारी भूख जो थी वो गायब हो गई बिपिन बाबू की. उनको उनका दिमाग चकराने लगा, घूमने लगा. सब कुछ वो भूल से गए थे. सारी भूख उनकी अब तक गायब हो चुकी थी. So students, today we have concluded this chapter right now. Yesterday we again go through this chapter and remaining chapter and hope you will read this chapter till now. यहाँ तक आप लोग एक बार रीडिंग करेंगे और कल हम बाकी का चैप्टर वापस से आप लोगों को रीड करके बताएंगे. Thank you very much.